नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्क़े कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने आज एक बार फिर अपनी पार्टी के साथ साथ शहर हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब को भी उजागर करने में कामयाब हुए हैं। बतलाया गया है कि उनके हल्के के मुस्तैदपुरा के साकिन एक स्पोर्ट्समैन नौजवान नरेश, जो कि एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने ज़ाती खर्चे से मदद की। तब उस नौजवान नरेश ने उनके पैसे से अपने पूरे लवाजिमात तय करते हुए गुजरात में मुनक़िद किए गए एक मुकाबले में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब हो गया। आज उस नौजवान ने अपने सभी रिश्तेदारों के साथ कौसर मोहिउद्दीन MLA के साथ साथ सदर मजलिस और पार्टी के दीगर लीडर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम नरेश है, मैं कारवान में स्टे करता हूँ। मैं शूटिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को लास्ट टाइम मैं केरला में 10th रैंक आया था PB में, जो है कि नेक्स्ट टाइम मैं पार्टिसिपेट करने के लिए लास्ट मिनट में पैसे नहीं आते, साहब से मिले थे, मेरे को जाने के लिए पैसे नहीं, थोड़ा हेल्प करा तो अच्छा रहता है। साहब भी हेल्प करे। लास्ट मिनट में गुजरात में थे, वो आता पार्टिसिपेट में मेरे को ऑल इंडिया रैंक में 70th प्लेस आया। तेलंगाना की TRS हुकूमत की देही इलाकों की तरक्की के लिए 30 दिनों के प्रोग्राम के चलते आज ज़िले विकाराबाद और दौलताबाद में अभी तक तकमील पा जाने वाले कामों का मुतालिका MLA P नरेंद्र रेड्डी ने जायज़ा लिया। इस मौके पर ZPTC, MPTC वगैरह के साथ साथ वहाँ के सरपंच और बहुत सारे मुतालिका अहदेदार भी वहाँ मौजूद थे। MLA मौसूफ ने काम करने की नौयत पर सारे मुतालिका अहदेदारों पर इस मौके पर बरहमी का इजहार किया, जिसमें मजीद तेजी लाने का जोर भी दिया। इसके बाद वो वहां के मंडल परिषद ऑफिस पहुंचे और वहां की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। ప్రభుత్వ విప్పుగా బాధ్యతలు తీసుకున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో నన్ను ఈ స్థాయికి చేర్చినటువంటి మా నియోజకవర్గ ప్రజలకు మరి ఓటర్ మహాశయులందరికీ కూడా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ మరి పినపాక నియోజకవర్గానికి గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా, ఎప్పుడూ లేని విధంగా 73 సంవత్సరాల స్వతంత్రంలో మరి కేసీఆర్ గారు గుర్తించి మరి మా కోయ జాతికి మరి విప్పు పదవిని కల్పించి క్యాబినెట్ హోదా కల్పించినందుకు మరి కేసీఆర్ గారికి రుణపడి ఉంటానని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటూ వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ ఉన్నా. ప్రధానంగా పదవి అనగానే అలంకారప్రాయం కాకుండా బాధ్యతాయుతంగా మరి ప్రభుత్వం తరఫున మరి ఏదైతే కేసీఆర్ గారు బాధ్యత అప్పచెప్పినారో ఆ బాధ్యతను మరి పూర్తి స్థాయిలో విజయవంతం చేసి మరి పార్టీ కూడా మరి గర్వపడే విధంగా చాలా చక్కని రోల్ పోషిస్తూ, అసెంబ్లీలో చక్కని రోల్ పోషిస్తూ మరి ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు తీసుకొచ్చేటువంటి దిశగా తప్పకుండా నా వంతు కృషి చేస్తానని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మరి ఒకసారి కేసీఆర్ గారికి, అదేవిధంగా KTR గారికి, అదేవిధంగా నియోజకవర్గ ప్రజలకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. तेलंगाना असेंबली के चीफ विप की हैसियत से आज D विनय भास्कर ने अपने ऑफिस का जायजा हासिल कर लिया। इनके साथ साथ विप की हैसियत से R कांताराव ने भी अपने ओहदे का जायजा चैम्बर्स में ले लिया है। నాపై నమ్మకం ఉంచి నన్ను చీఫ్ విప్గా నియమించిన అనంతరం ఈరోజు శుభదినం కాబట్టి మరి ఈ కార్యాలయంలో పూజలు నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. మరి ఈ కార్యక్రమానికి గౌరవ లెజిస్లేటివ్ అఫేర్స్ మంత్రివర్యులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, మా గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు పర్సనల్ దయాకర్ గారు, మా విప్ రేగా కాంతారావు గారు అందరూ కూడా హాజరు కావడం జరిగింది. మరి ఈ కార్యక్రమంకి హాజరైనటువంటి ఆత్మీయ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియా సోదరులకు అందరికి కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మొదటి నుంచి కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఒక క్రమశిక్షణ కార్యకర్తగా, ఒక గులాబీ సైనికునిగా తెలంగాణ
రాష్ట్ర సాధన కోసం ఆనాటి ఉద్యమ నేత కేసీఆర్ గారు ఏ పిలుపిచ్చినా కూడా విజయవంతంగా నిర్వహించడం జరిగింది. వారు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం రాజీనామాలు చేయాలన్నప్పుడు కూడా రాజీనామా చేయడం జరిగింది. ఒకవైపు పార్టీ బలోపేతం కోసము నా పైన నమ్మకంతో నగర అధ్యక్షునిగా ఇచ్చినప్పటికీ అప్పుడు కూడా పార్టీని బలోపేతం చేసేదానికి వరంగల్ నగరం పైన గులాబీ జెండా ఎగరేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఏ కార్యక్రమం ఏ బాధ్యత ఇచ్చినా కూడా నేను క్రమశిక్షణ కార్యకర్తగా మరి ముందుకు పోవడం జరిగింది. ఈ శుభ సందర్భంగా నాకు చీఫ్ విప్గా బాధ్యతలు చేపట్టినటువంటి మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, నా పేరు సిఫారసు చేసినటువంటి గౌరవ మున్సిపల్ ఇండస్ట్రీ శాఖ మంత్రులు కేటీ రామారావు గారికి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ, మరి సభలో అన్ని పక్షాల వాళ్ళను, స్వపక్ష వాళ్ళను, మిత్రపక్ష వాళ్ళను, ప్రతిపక్ష వాళ్ళను అందరినీ కూడా కలుపుకపోతూ మా జిల్లా అభివృద్ధి కోసము మా మంత్రివర్యులు ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు గారితో పాటు, సత్యవతి రాథోడ్ గారితో పాటు మా పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసనసభ్యులందరినీ కూడా మరి కలుపుకోబోతూ ఇటు జిల్లా అభివృద్ధి కోసం శాసనసభలు टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर हैदराबाद में वाक़ बर्र सग़ीर का मशहूर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क से आज एक सूजी नामी चिंपैंजी के फरार हो जाने की खबर मिली है और ये भी बताया गया है कि एक केयरटेकर यादయ్య ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसको ज़ख्मी कर दिया और वहाँ से भाग गया। बहरहाल पहले ही से इंसानों की भीड़ में इंसानों को ज़ख्मी कर देने के हवादिसात चल ही रहे थे कि अब उनमें एक चिंपैंजी भी शामिल हो गया है। तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के हल्के कोड़ंगल के मशहूर इलाके केसरा के किसानों ने आज बहुत बेबर्दाश्त होकर TRS हुकूमत के खिलाफ में इलाके के एग्रीकल्चरल मार्केट कमेटी ऑफिस के रूबरू ज़बरदस्त धरना दे ही दिया, जिसमें CITU के लीडर्स की क़ियादत में SC, ST, BC के साथ साथ कुछ अक़लियती तबके के लीडर्स भी शामिल हुए। इस मौके पर मुकामी MLA नरेंद्र रेड्डी ने फ़ौरन वहां पहुंचकर धरना देने वाले किसानों को धमकी दी कि जो वो कर रहे हैं इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। शहर हैदराबाद के बालानगर डिवीजन की DCP पद्मजा ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि कोमपल्ली पुलिस हुदूद में महकमा पुलिस की जानिब से चेकिंग के दौरान 3 देरीना चोर हाथ लगे, जिनके नाम ये बतलाए गए 19 साला रंजीत सिंह, 43 साला रनित सिंह और 50 साला नरसिम्हा सिंह। ये तीनों शातिर चोर रात की औकात में शटर्स तोड़कर सोने की दुकानों में चोरियां किया करते थे, जिनके कुछ और साथी भी थे। मौके पर इनसे यह भी खुलवा लिया गया कि अभी तक इन्होंने 11 केसेस किए हैं, लिहाजा मजीद तहकीकात के लिए इन्हें रिमांड कर दिया गया। 22-23 మిడ్నైట్లో జరిగినటువంటి ఒక అటెంప్ట్ మర్డర్ మా ఎస్ఐ గారికి జరిగినటువంటి కేసులో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ ఉంటే మనకు చాలా ఆసక్తికరమైన విషయాలు జరిగాయి, తెలిసాయి. మనం ఈ కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా
ఇవన్నీ చూస్తే దాదాపు ఒక 4 వ్యక్తులు ఒక ఈకో వ్యాన్లో ఉండి ఈ అఫెన్సెస్ చేయడానికంటే తిరుగుతున్న క్రమంలో మన ఎస్ఐ గారు అక్కడ పాట్రోలింగ్లో ఉన్నటువంటి పాట్రోల్ 2 మొబైల్ ఆఫ్ దుండిగల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఈ పేట్ బషీరాబాద్ లిమిట్స్లో ఆ రోజు నైట్ డివిజనల్ ఆఫీసర్గా తిరిగే క్రమంలో ఒక సస్పీషియస్ వ్యాన్ ఒకటి కనిపించి దాన్ని దిగి ఎవరు ఏంటి అని మనం వెరిఫై చేసే టైంలో వాళ్ళు అలర్ట్ అయిపోయి ఎస్ఐ గారి మీదకే ఫాస్ట్గా వ్యాన్ని రైడ్ చేయడం అనేది అందరికీ తెలిసింది. సో దాంట్లో ఎస్ఐ గారు బాగా ట్యాక్ట్ఫుల్గా యాక్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఏబుల్ టు సేవ్ హిస్ లైఫ్. తర్వాత మన పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఒక కంప్లైంట్ రైజ్ చేశారు. సో దాని మీద మనం 307 అండ్ ఆర్మ్స్ యాక్ట్ కింద కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ క్రమంలో మనము సీసీ ఫుటేజెస్ కానీ అదర్ రిలేటెడ్ హ్యూమన్ సోర్సెస్లో ఉన్నటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ కానీ తర్వాత టెక్నికల్ ఎవిడెన్సెస్ అన్నీ కూడా చూస్తున్న క్రమంలో వీ కుడ్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఎవరు ఏంటి అనేది ఒక చిన్న క్లూ దొరికింది. సో దాని మీద మన టీమ్స్ అన్ని కూడా బాగా వర్క్ చేస్తుండే. ఒకటి పేట్ బషీరాబాద్ టీము, ఒకటి దుండిగల్ టీము, ఒకటి అల్వాల్ టీమ్ అండ్ సిసిఎస్ బాలనగర్ అండ్ ఎస్ఓటీ సైబరాబాద్ టీమ్స్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్న క్రమంలో ఈవేళ మార్నింగ్ మనకు ఒక 3 మనకి ఫలానా వ్యక్తి చేసి ఉండొచ్చు అని వాళ్ళు మనకు చూచాయిగా అనిపిస్తే వాళ్ళని మనం స్టేషన్ తీసుకొచ్చి ఇంట్రాగేట్ చేయడం జరిగింది. సో వీళ్ళలో 3 కూడా ఒకరు రంజిత్ సింగ్, ఇతను హస్మత్పేటలో ఉంటారు. ఇంకొకరు రంజిత్ సింగ్ అలియాస్ పండా సింగ్, ఇతను కామారెడ్డి నేటివ్. అండ్ నర్సింగ్ సింగ్, ఇతను మహారాష్ట్ర జల్నా డిస్టిక్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి. వీళ్ళ 3 కూడా వాళ్ళు చేసినటువంటి అఫెన్సెస్ ఎక్కడెక్కడ చేశారు, ఎలాంటి అఫెన్సెస్ చేశారు అనేది కన్ఫెస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పటి వరకు మనకు ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రకారంగా దాదాపు ఒక 11 అఫెన్సెస్, దాంట్లో 9 సైబరాబాద్ కమిషనరేట్లో అండ్ 1 రాచకొండ కమిషనరేట్, 1 హైదరాబాద్ సిటీ కమిషనరేట్ 11 కేసెస్ ఒప్పుకున్నారు. దీంట్లో ఈ కేసెస్లో భాగంగా ఒక 4 ఈకో వ్యాన్స్ మారుతీవి, తర్వాత ఒక 2 వీలర్ మనము సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇక ఫర్దర్గా కూడా వాళ్ళు కొన్ని నేమ్స్ ఇచ్చారు. సో వాళ్ళని కూడా మనం పట్టుకొని రావాల్సి ఉంటుంది. ఈ కేసుకి మెయిన్ అక్యూజ్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారు. సో ఇంతవరకు ఈ కేసుని డిటెక్ట్ చేసినటువంటి అన్ని టీమ్స్ అండర్ సూపర్విజన్ ఆఫ్ ఏసీపీ పేట్ బషీరాబాద్ అండ్ డిఐ అల్వాల్ అండ్ డిఐ జగద్గిరిగుట్ట, డిఐ పేట్ బషీరాబాద్, సిసిఎస్ బాలానగర్ ఎవరైతే ఈ టీమ్స్ అన్ని చాలా కోఆర్డినేటెడ్గా వర్క్ చేసి ఈ కేసు డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఇంకా కొంత వ్యక్తుల్ని, కీలకమైన వ్యక్తుల్ని మనము పట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో త్వరలో వాళ్ళని కూడా పట్టుకొని ఇంకా ఫర్దర్ కేసెస్ దీంతో పాటు ఇంకా ఏమైతే ఉన్నాయి, వేరే పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్స్తో కూడా వర్క్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది ఈ గ్యాంగ్. సో అది కూడా మనం డిటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. भारतीय क्रिकेट टीम के शोहरत याफ्ता साबिका कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिन्हें कई तनाज़ात का सामना करना पड़ा था अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने सालों बाद अभी हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की सदारत की जीत हासिल करते हुए उप्पल स्टेडियम के ऑफिस में अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। साथ ही कमेटी मेंबर्स की इब्तिदाई मीटिंग में इन्होंने बतलाया कि खेल कूद के सारे तनाज़ात को वो ख़त्म करते हुए उसे साफ और शफाफ बनाने में जुड़ जाएंगे और करप्शन के खात्मे के लिए तो भरपूर जोर लगा देंगे। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स ईस्ट जोन टीम के लोगों ने इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 बदनाम जमाना देरीना मतलूब घरों में चोरियां करने वाले आदि सारकों को आज गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए हैं, जिनके नाम ये बतलाए गए। एक है माला योगेंद्र, जो कि योगी के नाम से भी मशहूर है, और दूसरा है वी श्रीनिवासचारी उर्फ श्रीनु उर्फ संपत। और इनसे 2 चोरियां तो वक्त पर ही कबूलवा ली गई, एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस हुदूद की और दूसरी जिले करनूल की। और उनके पास से इस मौके पर 30 तोले सोने के और 2.5 किलोग्राम चांदी के जेवरात बरामद करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस को मजीद तहकीकात के लिए हवाले कर दिया। इस केस में डिप्टी कमिश्नर टास्क फोर्स के श्रीनिवास की क़ियादत में टास्क फोर्स इंस्पेक्टर के श्रीनिवास ने अपनी टीम के साथ हिस्सा लिया। करने के बाद सर्च और सीजर के दौरान 30 तोलास ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट और 1.5 kg का सिल्वर आर्टिकल का रिकवरी हुआ। ये दोनों हाउस बर्गलर्स ऑफेंडर्स के नाम
माला युगेंदर एलियस योगी और वल्लभोजू श्रीनिवासाचारी एलियस श्रीनु एलियस संपत। ये लोग हैदराबाद के अलावा कर्नूल 3 टाउन पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश में भी ऑफेंसेस किए हैं। इनका डिटेल: माला युगेंदर एलियस योगी, एज 39 इयर्स, ऑक्यूपेशन पेंटिंग वर्क और डेली लेबरर्स का काम करता है और ये टेम्पररी एड्रेस नियर नाग देवता टेम्पल, तिरुमलगिरी, लाला बाजार, सिकंदराबाद। दूसरा वल्लभोजू श्रीनिवासाचारी एलियस सीनू एलियस संपत, एज 32 इयर्स, ऑक्यूपेशन कारपेंटर, टेम्पररी एड्रेस नियर रामालय, चेरकुपल्ली, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश और परमानेंट रेसिडेंट बैयालाल नगर, उप्पुगुड़ा। माला युगेंदर ओरिजिनली तिरुमलगिरी का रहने वाला है और ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। इसके ऊपर अभी तक 18 केसेस है हाउस ब्रेकिंग का और बहुत सारे क्राइम इन्होंने हैदराबाद और सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में किया है। 2015 में पीडी एक्ट के अंदर गांधीनगर पुलिस स्टेशन के तरफ से इसको जेल में भेजा गया था। बाद में 2019 में ये दूसरे केस में जब बाहर आया बेल पे, तो उसके बाद कुछ समय लेबरर का काम किया और फिर उसके बाद ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट भी गया। दूसरे ऑफेंडर जो है वो गए कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। वल्लभोजू श्रीनिवासाचारी एलियस सीनू एलियस संपत, ये 30 चेन स्नैचिंग केसेस में हैदराबाद, राजकोंडा और साइबराबाद में ये अक्यूज है। 2011 में ये बुरीवाड़ा, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश गया और वहाँ ये शादी किया। बाद में एक चेन स्नैचिंग के केस में चलापल्ली, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में इसका अरेस्ट हुआ। ये लोग दोनों क्रिमिनल चंचलगुड़ा जेल में इनकी दोस्ती हुई और उसके बाद से ये लोग एक नया गैंग बनाकर क्राइम का प्लान बनाते थे। 14 सितंबर 2019 को ये अक्यूज वल्लभोजू श्रीनिवासाचारी एलियस सीनू एलियस संपत हैदराबाद आया और वहां माला युगेंदर से मिलकर दे ट्राई टू कमिट एन ऑफेंस इन उस्मानिया यूनिवर्सिटी। उसके बाद ये लोग आदित्य नगर, कर्नूल, आंध्र प्रदेश, वहां जाकर एक हाउस ब्रेक एट नाइट भी किए, जो कि कर्नूल 3 टाउन पुलिस स्टेशन में जिसका केस बुक हुआ। आज जब ये लोग दोनों मिलकर डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी का प्लान बना रहे थे, तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी और ईस्ट जोन टास्क फोर्स को ये इंफॉर्मेशन आया और उन्होंने ये दोनों को अरेस्ट किया। अब हम लोग इनके खिलाफ पीडी एक्ट की भी तैयारी कर रहे हैं। ये पूरा ऑपरेशन हमारे एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स श्री एस चैतन्य कुमार उनके लीडरशिप में और उनके साथ कमिश्नर टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर के श्रीनिवास, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर पी रमेश, सी वेंकटेश, गोविंद स्वामी, जी श्रीनिवास रेड्डी और ईस्ट जोन के पूरे स्टाफ के साथ बहुत अच्छा इवली सपोर्टेड बाय उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन। इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से सभी ऑफिसर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद और पब्लिक को एक अपील कि अपने एरिया में, अपने कॉलोनी में रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, बिजनेस एसोसिएशन की तरफ से नेहरू सैंतम प्रोग्राम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा लगाएं, जिससे हैदराबाद को और भी ज़्यादा सेफ, सिक्योर और प्रॉस्परस सिटी हम लोग बना सकते हैं। शहर हैदराबाद के कुरमागुड़ा इलाके की अलजाबरी कॉलोनी के साकिन मोहम्मद अहमद साहब ने आज मीडिया के रूबरू ये बतलाया कि कॉलोनी में उनके तामीर किए जाने वाले मकान के पिलर्स को जीएचएमसी के अहदेदारों ने अचानक वहां पहुंचकर परमिशन ना लेने के बहाने गिरा दिया, जबकि इन्होंने इसका परमिशन हासिल कर लिया था और सारे पेपर्स इन्हदामी स्टाफ को बतलाए भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये कारनामा अंजाम दिया गया। इनकी इत्तला मुतालिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना को दी गई और उनके पूछने पर जीएचएमसी के लोगों ने
जोनल कमिश्नर के अहकामात पर ऐसा करने का जवाब पेश किया, जबकि मोहम्मद अहमद साहब ने बतलाया कि कोई मुकामी मामूली सी शोभा रामी नामी कोई औरत जिसका ताल्लुक बीजेपी से है, उसने उनसे मकान की तामीर करने से पहले 5 लाख का मुतालबा किया था। लेकिन जीएचएमसी के मकान गिरा देने के बाद मालूम हुआ कि जीएचएमसी की असल बास तो वो औरत साबित हुई है। मैं कुरमागढ़ कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना, आज जाबरी कॉलोनी में मेरे एरिया में 84 गज ज़मीन पे जो है ना उन्होंने बना रहे थे, क्योंकि वो ऑलरेडी 2012 या 13 में लिए और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, नोटरी के नहीं होते डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। यहाँ पर टाउन प्लानिंग वाले आके पूरा तोड़ दिए, जिसकी इत्तला मुझे नहीं थी। अभी मालूम हो गया तो मैं स्पॉट पे आई ब्रेक करा दी। इंशाल्लाह जो भी वेरिफिकेशन करके इनकी हेल्प करेंगे। मैडम, क्या ये इंसिडेंट होने से पहले आपको कोई गवर्नमेंट के जीएचएमसी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन या आपको कोई कॉल आया था? नहीं, कुछ नहीं। क्या ये मुनासिब नहीं था कि वो लोग आपको कॉल करना पहले करना चाहिए था? उसके बाद मैं आंसर करती थी। क्या कहीं एक ऐसा समझ सकते हैं कि एक तरफा कार्रवाई थी? जी हाँ, बराबर। मैं 2012 में लिया हुआ हूँ इस ज़मीन, गवर्नमेंट लैंड है बोल के मेरे को परेशान करी। सामने की औरत बीजेपी की है कहते हो, सुने शोभा रानी, सुने हफ्ते के दिन गया कंप्लेंट देने गया, से बनाने गया, से गया तो तोड़ने लगा दिए। मेरे को बोले बल्दिया ऑफिस में जाके कंप्लेंट लेके आओ, परमिशन लेके आ लो, आपको तोड़ते नहीं बोले। मैं बल्दिया ऑफिस में गया तो तोड़ने लगा दिए साहब। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, टैक्स भरे हुए रसीदा है, सब ऑलरेडी है। फिर मेरे को मालूम नहीं था तो अम्मा को फ़ोन करके बुलाया मैं, ये क्या केस है? गवर्नमेंट लैंड है तो गवर्नमेंट लैंड वहीं छे ना भाई, देखो आप हिस्ट्री में क्या है गवर्नमेंट लैंड यहाँ है तो बताओ। मेरे नाम पे पूरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, टैक्स रसीद भी आई हुई है मेरे पास, टैक्स भी भरा हुआ हूँ मैं ऑलरेडी, सब करा हुआ हूँ। हफ्ते के दिन बनाने गए तो तोड़ने लगा दिए। तो बल्दिया उसमें परमिशन देने ऐसे गया था मैं सुबह में, आज बल्दिया ऑफिस में आज गए तो तोड़ने लगा दिए। पुलिस में कंप्लेंट करो बोले तो पुलिस में हफ्ते के दिन गया, जो 3 बजे गया 6 बजे तक वहीं बैठा रहा। उन लोग बोले नहीं साहब, आप बल्दिया ऑफिस में जाके कंप्लेंट लिखा लेके आप परमिशन ला लो, बना लेते। 84 पे नहीं है बोल के बोले मेरे को। 2 महीने पहले गया था मैं, 84 में नहीं आता परमिशन, 84 गज है, 84 में नहीं आता। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसका नहीं जाऊँ, कैसा जाऊँ? पैसे दिया हुआ हूँ मैं, कौन देंगे, क्या है क्या नहीं इसका मसला। क्या कभी जीएचएमसी के तरफ से आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। खाली जो भी हरासमेंट हुआ वो बीजेपी की लीडर की तरफ से हुआ? हाँ, और 2 महीने पहले मैं मंडल ऑफिस में भी बुलाए भेजे थे मेरे को। मंडल ऑफिस वाले बोले अरे तुम्हारा कुछ भी साहब नहीं है साहब, आप है जो भी देना लेना है बाहर का बाहर दे के क्लियर करा के बना लो। वो कितनी ज़मीन है आपकी? 84 लोग दुनिया के ज़मीन खाली है, वो खाली है, तुम्हारा कौन सा गरीब आदमी? हम लोग खुद ही मदद करेंगे बोले। आज ये मदद करे मेरी, ये मदद करे गरीब आदमी की, ये मेहनत का पैसा है साहब। सुने, कोई मेरा 1 रुपये का रोज़गार नहीं है, मेरा मेहनत का पैसा है। ये रात दिन एक पैसा करके बनाया सो पैसा है। आज 17 लाख रुपए में लिया था 2012 में, आज ये तोड़ दिए मेरे इस चीज़ को। मैं क्या करूं, किसके पास जाना? मेरे को कोई मसला हल नहीं आ रहा। सुने, गवर्नमेंट लैंड तेलंगाना के सदर मुकाम शहर हैदराबाद, जहां से टीआरएस हुकूमत अपने अहकामात चलाती है, वो और इसके जुड़वा शहर सिकंदराबाद में हालिया वक्फे से थोड़ी सी बारिश ने हुकूमत की कारकर्दगी की पोल खोल दी है कि दोनों शहरों में बारिश के दौरान सड़कें तालाब का नज़ारा पेश करती रहीं, जिसमें क्या ड्रेनेज का पानी, क्या नल का पानी और क्या बारिश का पानी, सभी ने मिलकर जमकर आवाम पर हल्ला बोला और आवाम को बेसुध करके रख दिया। वक्तिया तौर पर जीएचएमसी की जानिब से पानी की निकासी करवाई जाती रही, लेकिन सही प्लानिंग का फुकदान इस मौके पर नजर आया और आवाम की परेशानी का जीएचएमसी की जानिब से कोई ख्याल किया गया और ना ही इसकी तरफ तवज्जो दी गई। जबकि लाखों करोड़ों के बजट का खर्चा कर देने का एलामिया तो वक्तन फौक्तन आवाम को जरूर बतलाया जाता है। तभी तो बल्दिया के ताल्लुक से आवाम के जहनों में ये मजबूत मुहावरा बैठा हुआ है कि बल्दिया खाया पिया चल दिया, है ना। सिटी पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने और उसके जरिए गड़बड़ का माहौल पैदा करने वालों को इंतबाह दिया और कहा कि पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने आवाम से अपील की कि वो सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दका पोस्ट को आम न करें। कुछ लोग कश्मीर के हालात पर फर्जी इत्तलात और तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं। उनका मकसद हैदराबाद में गड़बड़ पैदा करना है। उन्होंने कहा कि इन तस्वीर और वीडियो का मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये इराक और अफगानिस्तान की कदीम तस्वीर और वीडियोज हैं। हैदराबाद में पिछले 2 दिनों में कुछ शरारती लोग पुराने वीडियोस, दूसरे देश के वीडियोस जिसमें इराक, अफगानिस्तान, फ़लस्तीन के वीडियोस को कट एंड पेस्ट करके फॉरवर्ड कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। ऐसे मौके पे व्हाट्सएप ग्रुप के सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स को मैं एक वार्निंग देता हूं कि इस तरह के वीडियोस और पिक्चर्स को फॉरवर्ड करना कानूनन अपराध है और आपके खिलाफ केस रजिस्टर भी हो सकता है और आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ऐसे प्रोवोकेटिव पिक्चर्स और वीडियोस सर्कुलेट करने का केवल एक ही मकसद है, पब्लिक में दहशत फैलाना, पब्लिक के लॉ एंड ऑर्डर के माहौल को खराब करना, और हम लोग इसकी इजाजत कभी नहीं दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में दूसरे जगह अगर कुछ कहीं घटना हुआ उससे मुझे क्या मतलब, हैदराबाद को क्या मतलब। और पब्लिक और पुलिस की पार्टनरशिप के साथ किसी भी इस तरीके के मंसूबे को हम लोग सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। और जितने भी सोशल मीडिया के यूजर्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, सभी को मैं अपील करता हूं कि इस तरह के पिक्चर्स को आप फॉरवर्ड या अपलोड नहीं करें। ये किसी भी पिक्चर से कश्मीर का भी कोई मतलब नहीं है। ये कोई भी पिक्चर, इसमें कश्मीर के कोई ना तो पुलिस ऑफिसर का यूनिफॉर्म दिखता है, जो फोटोज है वो भी बाहर के देशों के लोग का है। तो ऐसे मौके पे मैं उम्मीद करता हूं तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सारी रियासत में बतकम्मा फेस्टिवल जोरों शोर से मनाए जाने के दौरान जिले संगारेड्डी के मशहूर मंडल जहीराबाद से भी खबर दी गई है कि वहां भी इसका एहतमाम बड़े पैमाने पर किया गया, जिसमें मुकामी एमएलए के मानिक राव और टीआरएस एमएलसी मोहम्मद फरीदुद्दीन ने हिस्सा लेकर खवातीन में हुकूमत की साड़ियां तकसीम की। इस मौके पर भरतनगर के एक मशहूर लीडर मोहम्मद कदीर ने मीडिया को बतलाया कि हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम को साड़ियां तकसीम करना एक तहसीन आफरी इकदाम है, जिससे साबित होता है कि सीएम केसीआर गरीबों के काफ़ी हमदर्द है। आज जो भारत नगर कॉलोनी के अंदर जहीराबाद में बतकम्मा की साड़ियों का जो बांटने का जो इंतज़ाम चल रहा है, टीआरएस की जानिब से है। और जहीराबाद बल्कि जहीराबाद नहीं, आल तेलंगाना के अंदर जो केसीआर साहब की बहुत ही अच्छी स्कीमात है ये। और आज इस कॉलोनी में जो जलसा हुआ है, इसके चीफ गेस्ट आली जनाब अलहज मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब, जहीराबाद कॉन्स्टिट्यूशन एमएलए के मानिक राव साहब शिरकत फरमाए और बकाया टीआरएस के कारकुन भी मौजूद थे। इंशाअल्लाह हर साल इसी तरह से हम तेलंगाना की गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हर वक्त ऐसे गरीबों के लिए स्कीमात जारी करते रहें। जैसा कि बतकम्मा हैं, जो इसमें कोई हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई नहीं, बल्कि हर सभी जातियों को साड़ियों को इंतज़ाम किया जा रहा है, ताकि केसीआर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम। आज कई गरीब घर ऐसे हैं कोई साड़ी नहीं खरीद सकते, बल्कि हमारे मुख्यमंत्री साहब जो हर लोगों के बारे में सोचकर औरतों के लिए अच्छे स्कीमात अमल में ला रहे हैं। जैसे कि शादी मुबारक है, कल्याण लक्ष्मी है, जैसा कि आज डिलीवरी का मसला है, केसीआर किट है, ऐसे बहुत सारे स्कीमात है। हम सारे लोगों से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे केसीआर साहब का। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।